जीनिया, इधर सैड होके क्यों बैठी है? खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? वियतनाम का वेकेशन खत्म हो गया। Hi guys, welcome back to my channel. I am Genia and this is the finale episode of Vietnam Diaries. You know that feeling when you are on your dream vacation and the day finally comes when you have to wrap it all up, leave it all behind and get back to routine? Yeah, that's exactly what I'm talking about. एंड पिछले 7 एपिसोड्स में आप सबने मेरे साथ वियतनाम के बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेसेस को एक्सपीरियंस किया एंड फाइनली वी आर ऑन द लास्ट एपिसोड. दीज आर गोइंग टू बी आवर लास्ट फ्यू आवर्स इन हनोई. तो इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि हनोई में लास्ट कुछ घंटे हमने क्या किया. तो हनोई इज़ अ ग्रेट प्लेस फॉर शॉपिंग. वियतनाम में ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं. तो हमने भी की बहुत सारी शॉपिंग. वी एक्सप्लोर्ड द सिटी, द स्ट्रीट मार्केट्स एंड वी बॉट some really interesting stuff. And finally, on the last day of our vacation, we visited the Temple of Literature, जो कि है एक बहुत interesting historical site that showcases Vietnamese culture in a very fascinating way. और फिर हुई हमारी घर वापसी. So that is what you're going to be seeing in this episode. Before I take you to the episode, I just wanted to say a huge thank you to each person जिन्होंने भी ये सारे episodes देखे, इनको इतना प्यार दिया, इतना पसंद किया, अपने friends के साथ share किया. Thank you so much. It really means the world to me. एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप सबके साथ में शेयर कर पाई. एंड आई होप यू एंजॉय वॉचिंग दिस एपिसोड टू. सो चलिए एपिसोड देखते हैं एंड आई विल सी यू ऑन द अदर साइड. हेलो, वी आर बैक टू द होटल इन हनोई. A25 में हम वापस आ चुके हैं. आवर ट्रिप इज़ ऑलमोस्ट ओवर. वैसे आज रात रहना है यहाँ पे, कल शाम की फ़्लाइट है, बट देखने के लिए वैसे एक ही जगह बाकी है जो कल सुबह जाएंगे. एंड हाँ, फ़िलहाल थोड़ा रेस्ट करने का प्रोग्राम है. फिर शाम को वी हैव फ्री टाइम, सो वी कैन डू सम शॉपिंग, सम ईटिंग, सम स्पा, वट एवर वी वांट टू डू. सो अभी बज रहे हैं 4:30, तो मे बी अराउंड 6 वी माइट गो आउट फॉर जस्ट टू सी क्या क्या मिलता है. कुछ इंटरेस्टिंग मिला तो वी विल शॉप. एंड या, आई विल स्लीप फॉर अ बिट नाउ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट. Walking through the busy streets of Hanoi. It's the weekend, so the markets are extra busy. हम जा रहे हैं सीधे. Yes. Yes. And you can see रास्ते के बीच में market है. Since it's the weekend, people are literally selling stuff in the middle of the street. यहाँ साइड में तो दुकानें हैं ही, बट रास्ते के बीच में भी चीज़ें बिक रही हैं. Imagine that happening in Mumbai. पुलिस वाले आके उठा ले जाएंगे सबको. एंड सम क्यूट स्टफ बीइंग सोल्ड हियर. चलिए एक्सप्लोर करते हैं. वी आर गेटिंग आवर पोर्ट्रेट मेड बाय दिस काइंड सर एंड मॉम इज़ द फर्स्ट मॉडल. एंड वी आर इन द streets of Hanoi and this gentleman is making our portraits. You can see some of his works right here. And mom wanted to get her sketch like that done and I'm very excited to see how it turns out. After mom, it was my turn and I had to sit very still so that the artist could make my sketch. And ज़िंदगी में इतना पेशेंस शायद मैंने पहली बार रखा होगा. And as you see, एकदम ध्यान से आर्टिस्ट मुझे देखकर मेरा स्केच बना रहे हैं. Then we found a very kind woman and we asked her to take a video of the both of us getting sketched. And आप सबको दिख रहा है कि पोर्ट्रेट में क्या बन रहा है, but we have not yet seen how it is. Our portrait is almost done. I am very excited to see it. Mom is also very excited. And there were Everybody says that is very beautiful. everybody on the road was saying it's really good. I haven't yet seen it. ऊपर से जितना दिख रहा है उतने में ही लग रहा है बहुत अच्छा बना है. Can't wait to record the reaction. Let's. Okay, I can see it. ऊपर से थोड़ा सा मुझे दिख रहा है. And sir is completing his final touches. Oh wow, that is beautiful. Wow, so nice, so pretty. I cannot see because I'm not wearing my specs, but wow, that looks so good. Do you like it? I like it. Oh wow, mom is getting very emotional. Oh my god. I like it. Beautiful. Okay, we're gonna get a picture clicked with this gentleman and I'm going to tell you more about where you can find him. Okay, so you saw that beautiful portrait that sir has made for us and I will put in the location of where he is. So this is on the streets of Hanoi and there is a specific location in which he sits. I will put in the picture and the location there. I hope you can find it. And
You can find him there. Please, whenever you come here, make sure you get a portrait made from him because he's too good. वियतनाम एडवेंचर्स में ऐसा हो गया है कि हमारा कैश हो गया है ख़त्म। एक जगह पे हमें करनी थी शॉपिंग एंड वहाँ जाके हमने रियलाइज़ किया कि जितने पैसे देने हैं उतने पैसे है नहीं। तो फ़िलहाल मैं ये कार्ड लेकर घूम रही हूँ ATM में ताकि मुझे थोड़े पैसे मिल सके, क्योंकि हमारे पास जो डॉलर्स थे वो एक्सचेंज कराने 2-3 दुकानों पर गए, बट रेट सब जगह अलग अलग मिल रहे हैं एंड हमें $100 एक्सचेंज नहीं कराना है। ओनली वांट टू एक्सचेंज $30। दे डोंट हैव चेंज फॉर दैट। तो मैं ये कार्ड लेकर घूम रही हूँ। एक ATM में जाके आ चुकी हूँ, वहाँ पे हुआ नहीं कुछ। मशीन पहले मेरा कार्ड खा गई, फिर उसने मेरे पैसे नहीं दिए, कुछ डिडक्ट नहीं हुआ, बट मेरे पैसे नहीं आए। तो अभी मैं आ चुकी हूँ HSBC के ATM में। होपफुली यहाँ से पैसे मिल जाएंगे, फिर हम वहाँ पे पे करेंगे फॉर सम थिंग्स वी वांट टू बाय एंड देन वी आर गोइंग टू ईट फूड। ये देखिए मॉम भूख के मारे बैठी हैं। ओके, इट्स टाइम फॉर अस नाउ टू यूज़ द ATM। हेलो, हमने अभी कर लिया है डिनर एट, आपको कुछ दिख रहा है, डोमिनोज़। वियतनाम में आके भी हमने डोमिनोज़ में डिनर करने का चूज़ किया। वी हैड सम पास्ता एंड सम चॉकलेट चीज़ समथिंग एंड देयर आर लॉट ऑफ शॉप्स हियर। देयर इज़ हनोई क्रोसॉन कॉफ़ी एंड अभी एक दीदी रास्ते पे बहुत इंटरेस्टिंग तरह की आइसक्रीम बेच रही थी। हम उन्हें ढूंढते हुए जा रहे हैं। शी वाज समवेयर हियर ओनली, so we're going to try that and then hopefully go for a massage. आज last night है वियतनाम में and I do want to go for a spa and let's see, I hope ये खुला हुआ हो because it's already 10 o'clock. तो चलिए चलते हैं। ये देखिए हमने ले लिया है ये, दिस इज़ नॉट आइसक्रीम आई रियलाइज्ड एंड मैं किसी वहाँ पे एक दीदी जो बेच रही थी उनके पास जाने वाली थी, पर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट दीदी वी केम टू दिस सर who gave us this. It looks like rice crisps जिसके ऊपर कोई टॉपिंग दी जाती है and it's like put in liquid nitrogen and एकदम ठंडा ठंडा खाने को मिलता है. So let's try this. मम्मी ट्राई करो एक. I will record live reaction. I just thought I heard our trip leader Krishna, but then I remembered he is not here. He has flown back for his next trip. So you have to eat it like a chopstick, not like that, but okay, try. Oh, it's crispy. It's crispy. Rice crisps with some toppings. Very interesting looking. You have chocolate, matcha, taro and strawberry. But very interesting new kind of invention जो मैंने पहली बार यहाँ देखा है. तो चलिए मैं भी ट्राई करके देखती हूँ. मम्मी फ़ोन पकड़ने का ये है स्कोप है. But now I'm gonna try one. I don't even know how to have this. Oh. Nice. Really nice. Hello. It is now 1:20 AM on the 28th of December and I am very sad क्योंकि हमारे वापस जाने का दिन आ गया है. फ़िलहाल तो मुझे सोना है. So basically after we had that cold ठंडा कुरमुरा balls, we went for a spa and a facial. एंड वो होने के बाद फिर हम वापस आए, फिर थोड़ा सामान वगैरह समेटा क्योंकि कल सुबह चेकआउट करना है. एंड वी स्टिल हैव वन प्लेस टू विजिट जो कल सुबह हम जाएंगे, टेम्पल ऑफ लिटरेचर. तो मैं आपको वहाँ जाके इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाऊंगी. फ़िलहाल तो मैं सोने जा रही हूँ. कल थोड़ा सा आराम से उठने का प्लान है, बट ट्रिप ख़त्म हो गया एंड टुमारो बाय दिस टाइम वी विल बी स्लीपिंग इन आवर ओन हाउसेस. मैं मुंबई में रहूँगी वापस आफ्टर 9 होल डेज़ हियर. एंड दुख हो रहा है बहुत मन में, बट मोर ऑन दैट वाइल आई एम गोइंग बैक होम. फ़िलहाल के लिए गुड नाइट. हेलो, इट्स आवर लास्ट डे इन वियतनाम एंड हम चेकआउट करने वाले हैं फ्रॉम आवर होटल इन हनोई. तो आपको गंदे से रूम का एक क्विक रूम टूर दे देती हूँ. वी आर इन द सेम होटल दो A25 जहाँ पे हम 2 दिन पहले भी थे. एंड ये है हमारा कमरा जहाँ पे हमारे लास्ट मिनट पैकिंग चल रहे हैं. द बेड साइड टेबल, द बाथरूम, मी, and I'm wearing an ao dai, as you can see, traditional dress that Vietnamese women wear. ये मैंने हनोई से ही लिया है and it's a very pretty color with a very pretty pattern. I've paired it up with white leggings and mom has also purchased this cute little dress from Vietnam and she looks 35. Everybody in the comments make some noise and say she looks 35, otherwise कोटा you will get. चलिए, we have to leave now. We are going to the Temple of Literature and then फिर वापस आकर we are going to leave for the airport. Vacation खत्म होने वाला है, तो चलिए let's go to the Temple of Literature. हेलो, वेलकम टू द टेम्पल ऑफ लिटरेचर. हमारा स्वागत हुआ है इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स से एंड एवरीवन इज़ एंटरिंग फ्रॉम हियर. वी आर गोना गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर व्हाट द टेम्पल लुक्स लाइक. हमारे ग्रुप के कुछ साथी अंदर जाते हुए. चलिए, ये है टेम्पल ऑफ लिटरेचर का सुंदर सा इनर कोर्टयार्ड एंड जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग थे. इट वाज अ संडे प्लस
किसी एक कॉलेज की ग्रेजुएशन सेरेमनी भी चल रही थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें यहाँ पर दिखे. There are 82 such stone slabs in the Temple of Literature, which honor all the scholars who passed their royal exams between the 15th and the 18th centuries. It was also believed that rubbing these golden statues would get you good luck and success in education. So, of course, I honored that ritual ताकि हमें भी success मिले. Then we entered this beautiful temple, which is dedicated to Confucius. All the students would come here to offer their prayers so that they would get success in education. एंड आज भी यहाँ पर लोग आते हैं अपनी गुड लक और सक्सेस के लिए प्रे करने के लिए. The timelines of all the dynasties that ruled Vietnam and their history. Some interesting info I found about the Tran Ho dynasties, where the students had to pass through 4 levels of exams. And this is their whole timeline and some original artifacts. This one is a royal decree of King Trang Thai Tong. Wow, they've preserved the original. In the final bit, there is a special exhibition which is an introduction to Vietnamese ceramics through the different periods. तो जो भी time periods of the dynasties आप देखते हैं इस जगह पर, through those dynasties how the different ceramics changed and how they were shaped is what you can see in this exhibition. मैं आपको फटाक से दिखा रही हूँ. आप जब आएंगे तो please take some time to read all the info and have a look at these beautiful pieces right here. जैसा कि मैंने बताया, हमने बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स देखे जिनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी चल रही थी एंड दे वर हैविंग सो मच फन. सो मेनी पीपल गैदर टू वॉच व्हाट दे वर डूइंग एंड इन्हें देख के मुझे सच में अपने कॉलेज डेज की याद आ गई. It was absolutely lovely to see them just enjoying themselves. Hello, we have just had lunch at the Taj and we have 5 minutes more. हमारी बस आने वाली है and ये है स्ट्रीट का नज़ारा. And बस it's going to be bye bye Vietnam in a bit. अभी हम एयरपोर्ट जाएंगे, चेक इन करेंगे एंड सीधा ऑन अ फ्लाइट टू मुंबई एंड दिल्ली एंड वेरेवर एल्स एवरीबडी इज गोइंग. हम तो मुंबई ही जा रहे हैं. बट या But okay, I will give you more updates जब तक हम घर पहुँचे. And now we are finally on our way to the airport. Oh my God, घर वापसी का टाइम हो गया है and I'm trying to capture as many memories as possible. ये क्या आ गया? विन होम्स ग्लोबल गेट. हम पहुँच चुके हैं इमिग्रेशन वाली लाइन में. ये देखिए यहाँ का क्यू. पता नहीं यहाँ कितना वक्त लगेगा. मे बी एन आवर, मे बी हाफ एन आवर. पैकेज ड्रॉप तो हो गया जल्दी से. अब देखते हैं इमिग्रेशन में कितना वक्त लगता है. वी आर ऑन टाइम, सो वी हैव नथिंग टू हरी और वरी अबाउट. सो लेट्स क्लियर द इमिग्रेशन. ये देखिए मैजेस्टिक सा ड्रैगन at Vietnam airport. Beautiful, beautiful installation right here and such nice pretty flowers. And ये देखिए, wow, it's a long long stretch and हमने अभी यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाई है. Wow, just look at the dragon. क्या बात है. Some more pretty installations as we go inside. And mom वहाँ ready हो गई हैं near the conical hat and fan. And look at that, such pretty beautiful fans. And यहाँ पे भी मस्त मस्त installations which all give the message of Vietnam and their civilization and culture. On the Travelator, window shopping करते हुए हम जा रहे हैं धीमे धीमे हमारे गेट्स की तरफ जो हैं बहुत दूर अभी. एंड ये है हमारे नए दोस्त. नहीं, एक ही नई दोस्त है, ये तो पुरानी दोस्त है हमारी. एंड ये हूँ मैं, गिविंग फुल टूरिस्टी फील्स. अरे आ गया हमारा स्टॉप. 1 मिनट, लेट मी गेट ऑफ फ्रॉम दिस ट्रैवलेटर. हाँ जी, तो हम जा रहे हैं बस शॉप करते हुए मस्त. एंड या द ट्रिप इज एंडिंग गाइस. आई एम गोइंग टू से दैट 5,000 मोर टाइम्स. होगी हमारी प्लेन में एंट्री एंड फाइनली वी आर बोर्डिंग द फ्लाइट बैक टू मुंबई. बाय बाय वियतनाम. अभी तक हुआ नहीं है बट या. हेलो, हम बोर्ड कर चुके हैं हमारी फ़्लाइट और हमें मिली है सबसे घटिया सीट के बाद वाली सबसे घटिया सीट, यानी मिडिल रो का आइल सीट. चाहिए था हमें विंडो सीट. विंडो वाले रो का आइल तो मिला नहीं, मिडिल वाले रो का आइल मिला है. एंड
पोजिशनिंग देखिए सीट की, राइट वेयर द वॉल द पार्टीशन इज़ बिटवीन वन जोन एंड द अदर। एंड एक तो ये रिमोट भी ठीक से काम नहीं कर रहा था व्हेन आई सैट इन द फ्लाइट। पहले ये जो रिमोट है दिस वन, ये अपने कंपार्टमेंट से बाहर नहीं आ रहा था और फिर वन पर्सन द क्रू हेल्प मी, एंड अभी बाहर आ गया है तो अभी अंदर नहीं जा रहा, इट इज़ हैंगिंग जस्ट लाइक दैट। तो 4 hours 45 minutes काटने हैं इस फ्लाइट में एंड घर वापस नहीं जाना, फिर भी जाना पड़ रहा है। मंडे ब्लूज़ कल सॉलिड हिट होने वाले हैं, बट वेल सब बढ़िया है। चलिए घर वापसी का वक्त हो गया है। मॉम वेरी इंटेंटली ट्राइंग टू फिगर आउट स्क्रीन पे क्या चल रहा है, बट ओके। बाकी का ट्रिप एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट। आई विल गिव यू अ डिटेल्ड डीब्रीफ वंस वी रीच होम एंड या लेट्स पुट आवर फोन्स ऑन एयरप्लेन मोड एंड हैव अ गुड फ्लाइट, ट्राई टू एट लीस्ट। We started off with this classic game जिसमें मैंने एक के बाद एक धनाधन सारे जेम्स उड़ाए एंड इस गेम में मुझे बहुत मजा आया। उसके बाद मैं खेलने लगी ये वाला फिश गेम। इट टुक मी अ लॉट ऑफ अटेम्प्ट्स टू फिगर आउट हाउ टू प्ले दिस गेम, बट देन आई फाइनली फिगर्ड आउट हाउ टू डू इट एंड आई हैड अ गुड टाइम प्लेइंग दिस। एंड फिर हमने की थोड़ी सी बॉलिंग। अब आप देखेंगे मेरे फैंटास्टिक बॉलिंग स्किल्स, ये देखिए, अरे धनाधन, दैट इज अ 10 on 10। यस, एंड मेरा नाम आ गया है लीडर बोर्ड पे सबसे पहले, आप देख सकते हैं मेरा नाम, ये। फिर मॉम ने ट्राई की थोड़ी सी बॉलिंग, दैट्स मॉम ट्राइंग टू हिट द टारगेट। ओह वाओ, शी हैज आल्सो डन इट सक्सेसफुली, ये। कंग्रेचुलेशंस, बॉलिंग टूर्नामेंट की समाप्ति हो चुकी है एंड लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर मेरा नाम है, तो वियतनाम एयरलाइंस में भी हम झंडे गाड़ कर आए हैं, ये। हेलो, हमारी हो चुकी है इंडिया वापसी एंड या ये देख के अब लग रहा है कि हाँ इंडिया आ चुके हैं वापस एंड इट्स नाउ 9:45 PM इन द नाइट, बट मुझे बहुत भूख लग रही है। ये ऑब्वियसली इतना बड़ा हैट लेके चलना है तो सोचा पहन ही लूँ। एंड या चलिए फ्लाइट से निकल कर सामान कलेक्ट करते हैं, फिर घर जाके सो जाएंगे। इंडिया आ गए, वैकेशन खत्म हो गया। मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का 15 किलोमीटर वाला स्ट्रेच चलकर हम जा रहे हैं इमिग्रेशन एंड बैगेज कलेक्शन की ओर। अगर आप T2 से कभी गए हैं, आपको पता है कि T2 में कितना ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। जस्ट वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड फाइनली आई थिंक वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द स्ट्रेच। एंड अभी इस तरफ जाकर इमिग्रेशन करना है पहले, आई होप वो जल्दी हो जाए एंड देन वील टेक आवर बैग्स एंड गो होम एंड स्लीप। हेलो गाइस, हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर। इमिग्रेशन लिटरली टुक लाइक 2 minutes। द वॉकिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द एयरक्राफ्ट टू द इमिग्रेशन टुक 1500 hours, बट इमिग्रेशन 2 minute में हो गया। फिर हम बाहर आए एंड वी हैड टू वेट फॉर अ वाइल फॉर द कार टू कम। तो हमने सोचा थोड़ा कुछ खा ले, बिकॉज भूख लगी थी, तो बस खाना ख़त्म करने गाड़ी ऑलमोस्ट आ चुकी है। अब बस गाड़ी में चढ़ के घर जाना है एंड वेकेशन ख़त्म हो गया गाइस। तो बस यही अपडेट आपको फ़िलहाल देना था। फाइनल अपडेट आपको मैं घर जाके दे दूँगी। सो या सी यू सून। सुंदर सुंदर म्यूरल्स at the exit of the airport and we are off. Finally हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। Hello, hello, hello. I am back home and the vacation has officially ended. My heart is paining as I say that, but the vacation has ended and it's a Monday already. 12:30 बज रहे हैं। Monday blues जो hit होंगे आज, I can not even imagine actually. I have work to do today. I did not take an off, though I would have liked to, लेकिन काम पेंडिंग है तो आज मुझे काम करना है। But this was an experience of a lifetime. Vietnam is definitely a beautiful, beautiful place. And बहुत सारे जो important places थे वो हमने visit किए, जैसा कि आपने पिछले सारे parts में देखा। And I hope you enjoyed watching the vlog series. If you did, make sure you like the video, share it with all your friends who are planning to go to Vietnam or who have already been there, ताकि वो भी इन वीडियोस को देखकर अपने एक्सपीरियंसेस रीलिव कर सकें। एंड कमेंट एंड लेट मी नो विच वाज योर फेवरेट पार्ट। आप कौन से प्लेस को विजिट करना चाहेंगे या आपका फेवरेट प्लेस कौन सा रहा। एंड हिट द बेल आइकॉन, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड येस आई विल गो ऑफ एंड क्रैश नाउ। जो भी सारे होटल्स में हम रहे, जिस भी प्लेस का मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो में बताया है, आई विल लिंक ऑल ऑफ दोज और टाइप देम आउट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो यू कैन डेफिनेटली चेक देम आउट। एंड या
I will catch you again with a lot more fun stuff, many more fun videos coming up very, very soon. And until we meet again, you know the drill. Stay awesome, keep shining. Hasta la vista.